So yesterday we studied all the physical properties, and today we are going to study the chemical properties of the acids. In the chemical properties, we basically study how the acids react with different elements or different chemicals. Chemically, how they react with them. Firstly, we are having the reaction with the metals. How the acids react with the metals. See, in the physical properties, we have already studied that acids react with the metals. वो क्या होते हैं? Corrosive होते हैं. That is why they are not stored in the metal containers. They are stored in the ceramic or the glass containers. So whenever an acid reacts with metal, it forms a salt with the liberation of hydrogen gas. जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उस मेटल का सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कराएगा. हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक टेस्टिंग मेथड भी होता है. वो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, जब भी वो लिबरेट करती है इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. जब भी उसको टेस्ट करेंगे, उसके पास में हम मैच स्टिक लाके अगर उसकी जहाँ टेस्टिंग हो रही है उसकी टेस्ट ट्यूब के पास में इफ यू ब्रिंग वन मैच स्टिक इट विल बी ब्लोन. जो मैच स्टिक होगी वो बुझ जाएगी एंड देयर विल बी अ पॉप साउंड व्हिच confirms the presence of the hydrogen gas there. Okay, so in this reaction we are having the hydrochloric acid. It is reacting with the magnesium to form magnesium chloride and the hydrogen gas. Next we are having the sulfuric acid which reacts with the zinc to form zinc sulfate and the hydrogen gas. So here the metals are magnesium and the zinc. और एसिड्स कौन से लिए हमने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड. दो रिएक्शंस आपको दिखाए गए हैं जो सॉल्ट फॉर्म करते हैं विद द लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस. सॉल्ट्स आर द मैग्नीशियम क्लोराइड एंड द जिंक सल्फेट हियर. नेक्स्ट रिएक्शन वी आर हैविंग द रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स. जब भी हम लोग कार्बोनेट्स के साथ में एसिड्स को रिएक्ट करेंगे तो किस तरीके का केमिकल रिएक्शन होगा? एसिड्स रिएक्ट विद द कार्बोनेट्स टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड द सॉल्ट. See, in this reaction also salt will be formed, but here hydrogen gas will not be liberated. Here what will happen? With the salt, the byproducts will be water and the carbon dioxide. यहाँ पे क्या कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी. So acids react with the carbonates to form salt and water and also the carbon dioxide. Here the reaction is showing hydrochloric acid reacting with the calcium carbonate to form the calcium chloride with the liberation of this carbon dioxide gas and the formation of water. And this type of reaction is done in the laboratory also to prepare the carbon dioxide. If we are going to prepare carbon dioxide कैसे prepare की जाती है? By using this reaction. अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट, कोई कार्बोनेट है हमारे पास, say it is calcium carbonate or copper carbonate, whatever is it, अगर हम उसे एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है. So if we want to prepare the carbon dioxide, we can use this reaction. Next and the very most important reaction is reaction with the bases. We have already studied that acids react with the bases to form salt with the water. जब भी आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? दोनों का इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बन जाएगा एक सॉल्ट जो टोटली न्यूट्रल होता है. सो इन दिस रिएक्शन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्टिंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आप ऐसे पढ़ सकते हो कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया और उसने सॉल्ट बना दिया है. यही सेम रिएक्शन आप बेसिस में भी पढ़ोगे, जहां बेसिस को एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तब भी यही सेम रिएक्शन होगा. द बेस विल रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड द वाटर. सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग द यूजेस ऑफ द एसिड्स. हियर व्हाट वी विल बी स्टडीइंग? हियर वी विल स्टडी uses of acids. Acids कहाँ use किए जाते हैं? We are having different acids and their different uses. Firstly we are having the hydrochloric acid. देखो जो main आपके acids होते हैं वो होते हैं hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. इससे ये जो होते हैं ये strong acids होते हैं. इसके बाद होते हैं आपके acetic acid, वो एक थोड़ा mild acid होता है. We will be studying the uses of those kind of acids also.
So firstly we are having hydrochloric acid. We will study every acid one by one. Firstly we are having the hydrochloric acid. Hydrochloric acid के क्या use है? The dilute hydrochloric acid is used in the various industries for removing the deposits from inside boilers. This is known as descaling. देखो सबसे फर्स्ट मेथड है, सबसे फर्स्ट यूज इसका क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, डीस्केलिंग के लिए यूज किया जाता है. व्हाट इज डीस्केलिंग? योर मेटल्स, आपके कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जब आप पानी बॉईल करते हो, इफ यू बॉईल वाटर इन सम मेटालिक कंटेनर और मेटेलिक कंटेनर, तो उसके अंदर क्या होता है, आपने घर में भी कई बार देखा होगा, ये जो अंदर का पोर्शन होता है उसके अंदर वाइट सी लेयर जम जाती है. अगर आप रिपीटेडली किसी चीज को बॉईल करते रहोगे उस कंटेनर में, घर में तो बहुत कम यूज होता है, घर में तो बहुत कम करते हैं हम ये काम. इन द इंडस्ट्रीज बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारा पानी गर्म किया जाता है. दे आर एक्चुअली द बॉयलर्स. और सिर्फ पानी ही नहीं गर्म किया जाता है, उसमें पता नहीं क्या क्या गर्म करते हैं. तो उसके अंदर क्या होता है, मेटल के जो कंटेनर्स है उनकी इनर बाउंड्रीज के ऊपर स्टिक हो जाता है वो मटेरियल और वो हार्ड हो जाता है. तो उसको रिमूव करने के लिए, रिमूविंग दैट लेयर, उसको क्या बोलते हैं हम, डीस्केलिंग. उस चीज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. We simply put the dilute hydrochloric acid in it. और अगर हम उसको बॉईल करते हैं तो उससे क्या होता है, वो साइड की जो लेयर है वो डीस्केल होकर उसके अंदर जो डिपॉजिट्स हैं वो निकल जाते हैं. So this is the first use of this hydrochloric acid. Next is the use for cleaning sinks and the sanitary ware. जैसे आपने डीस्केलिंग किया है, ऐसे ही घर में भी सिंक्स और सैनिटरी वेयर जो होते हैं, जो घर में यूटेंसिल्स वॉश करते हैं, जिसके सिंक में वो स्टील वाली जो सिंक होती है, दैट इज ऑल्सो अ मेटल सिंक, उसको क्लीन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. थर्ड, इट हेल्प्स इन द प्योरिफिकेशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट. सी, जो आप कॉमन सॉल्ट खाते हो, विच एवर सॉल्ट यू ईट, वो कहाँ से डिराइव किया जाता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओशियंस. वो आप सी से डिराइव करते हो, बट वहां से डिराइव करने के बाद उसे एज इट इज नहीं खाया जाता है. इट इज नॉट कंज्यूम्ड एज इट इज. फर्स्टली इट इज प्योरिफाइड. द कॉमन सॉल्ट, फर्स्टली इट इज प्योरिफाइड एंड देन इट इज कंज्यूम्ड. सो इन द प्योरिफिकेशन मेथड this acid is used. Got it? Next we are having the sulfuric acid. Okay, wait. One extra bit is also left. You know, your body is also having this kind of acid. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, it is naturally secreted in the body also. हमारी बॉडी के अंदर भी सिक्रीशन होता है इसी एसिड का, which is used in the digestion process. The gastric juice in our stomach contains the HCl. This is the hydrochloric acid which is inside our body also. जो हमारी बॉडी के अंदर gastric juice होता है स्टमक में, that contains this acid which is hydrochloric acid, and it helps in the breakdown of the components of food and digesting that food also. Okay, so this is the natural process. So this hydrochloric acid is also present inside our body. Next acid is sulfuric acid, which is H2SO4. ये कहाँ यूज होता है? It is used in the manufacturing of fertilizers, drugs, dyes, detergents, paints, and the explosives. Different fertilizers we are using for the plants. So in the manufacturing of these fertilizers, dyes, colors करते हैं हम लोग different क्लोथ्स को, उनकी डाइंग में भी, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए भी दिस एसिड इज यूज्ड. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, आर्टिफिशियल सिल्क एंड द सेल्यूलॉइड. जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं, जैसे आर्टिफिशियल सिल्क इज द रेयन. दीज आर द सिंथेटिक फाइबर्स. जैसे आप नेचुरल फाइबर्स पढ़ते हो जो प्लांट्स और एनिमल्स से बनाए जाते हैं, विच आर नेचुरली अकरिंग, वो नेचुरल चीजों से ऑब्टेन किए जाते हैं. बट द सिंथेटिक फाइबर्स, दीज आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय यूजिंग सम केमिकल्स इन द लैबोरेटरीज. सो दिस इज वन सिंथेटिक फाइबर व्हिच इज आर्टिफिशियल सिल्क व्हिच इज नेम्ड एज रेयन. उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या यूज किया जाता है? H2SO4 यूज किया जाता है. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज इन द रिफाइनिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. वी आर यूजिंग पेट्रोलियम हियर. In the refining of that petroleum, again H2SO4 is used.
इट इज़ ऑल्सो यूज इन द स्ट्रॉन्ग बैटरीज, जो आपकी इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं उसके अंदर भी यूज किया जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैटरीज जो आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी देखते हो, बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज लगी होती हैं, उसमें भी क्या यूज किया जाता है, H2SO4 यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द टेक्सटाइल, पेपर एंड द लेदर इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जहाँ पे आपके क्लोथ्स बनते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज एंड द लेदर इंडस्ट्रीज जहाँ पे लेदर का काम होता है। In these kind of industries also, sulfuric acid is used for different purposes. Got it? See, we are having such large uses of sulfuric acid. Sulfuric acid के इतने ज़्यादा use होने की वजह से उसको क्या बोला जाता है? It is known as the king of the chemicals. Here it is also written. देख रहे हो आप यहाँ पे? It is known as the king of chemicals because of its large number of uses. It is widely used in different purposes, so it is also called king of chemicals. Next chemical we are having nitric acid. It is used in the manufacturing of, again, the fertilizers like the ammonium nitrate. Different fertilizers we are using for our plants. प्लांट्स के लिए हम लोग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। मैन्योर्स तो ऑर्गेनिकली बनाए जाते हैं, बट फर्टिलाइजर्स बाय यूजिंग सम केमिकल्स। सो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, बेसिकली उसके अंदर कौन सा फर्टिलाइजर में कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, अमोनिया होना चाहिए, तभी नाइट्रिक एसिड हम लोग यूज कर रहे हैं। अमोनियम नाइट्रेट अगर उसके अंदर है फर्टिलाइजर में, तो डेफिनेटली इट विल बी यूजिंग द नाइट्रिक एसिड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्टिलाइजर. Next, it is also used in the manufacture of explosives like trinitrotoluene, trinitroglycerine, picric acid, gun cotton, dynamite, etc. These are basic. देखो ये क्या है, ये organic compounds हैं। इनकी प्रोडक्शन के लिए भी क्या यूज कर रहे हैं, बेस प्रोडक्ट क्या यूज किया जा रहा है, नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड यूज किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव्स क्या होते हैं, ये वैसे डेंजरस होते हैं बहुत। These are explosives, these are used for the explosions. तो उनको बनाने के लिए भी बेस क्या यूज किया जा रहा है, नाइट्रिक एसिड यूज किया जा रहा है। So it is having a large use also. Nextly, it is used for editing designs or names upon metals like copper, brass और bronze. आपके different designs होते हैं, देखा होगा आपने घर में डेकोरेटिव आइटम्स होती हैं जो ब्रॉन्ज की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, उसके ऊपर नाम लिखा होता है ना कई बार। वो कैसे लिखा जाता है, बाय यूजिंग दिस नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एसिड इज द एसिटिक एसिड. इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। जो हमने बाकी एसिड्स पढ़े हैं अभी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड, दीज आर बेसिकली counted as the strong acids. Next we are having the acetic acid. It is basically a mild acid, you can say. So acetic acid, it is used as a cleaning agent in the products meant for cleaning windows, floors, utensils. Cleaning purpose के लिए basically use किया जा रहा है। acetic acid क्या है, क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। और इसको आप लोग बोलते भी हो, विनेगर भी बोलते हैं इसको। एसिटिक एसिड क्या होता है, विनेगर। आप सिरका बोलते हो ना, घर में भी यूज करते हैं इसको, माइल्ड जो होता है। इट इज मेंट फॉर द क्लीनिंग पर्पस। आप विंडोज क्लीन करने के लिए, फ्लोर क्लीन करने के लिए, यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए भी यूज करते हो इसे। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव द स्टेन्स ऑन द वुड वर्क एंड द कारपेट्स। बेसिकली क्लीनिंग के लिए काम कर रहे हैं, मतलब स्टेन रिमूविंग के लिए काम कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट यूज फॉर द एसिटिक एसिड. It is also used as the preservative in the pickles. आप घर में अचार बनाते हो, बाहर से भी खरीद के लेके आते हो, so that pickle, it is having the preservative. Preservative क्या होता है, उसको ज्यादा टाइम के लिए यूज करें हम ताकि वो खराब ना हो, उसके अंदर हम लोग preservatives ऐड करते हैं ताकि it can be used for long for eating. वो जल्दी से खराब ना हो, इसलिए उसके अंदर preservatives ऐड किए जाते हैं. So acetic acid is one kind of preservative which is added in the pickles. Next, it can be used directly to enhance the flavor of the food. आप अपने खाने में भी यूज करते हो इसे. In fact, we commonly know acetic acid as the vinegar. अभी मैंने आपको बताया ना, विनेगर भी बोलते हैं इसको, हिंदी में उसे सिरका भी बोलते हैं. So it can be used directly to enhance the flavor of the food. आप घर में कोई खाना बनाते हो, उसके अंदर भी इसको ऐड कर देते हो. सैलेड बनाते हो, सैलेड के अंदर भी कई बार इसको ऐड कर देते हैं. So this is
one mild acid which is used for the heating purpose also. So these are basically the uses of different acids. So we are done with the acids. Next we will be studying the bases. Thank you and have a good day.